फंक्शन ऑफ सम अर्बन सेंटर. इफ यू टेक अर्लीस्ट टाउन, पुराने शहरों को देखेंगे तो दे वर मेनली सेंटर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड, इंडस्ट्री, डिफेंस. टाउन्स रिलीजियस इंपॉर्टेंस से शहर बने हुए हैं. तो हम एक एक करके लेंगे. अगर हम सिग्निफिकेंस देखें डिफेंस टाउन्स का और रिलीजन्स का, देयर फंक्शन डिफरेंस फ्रॉम वन अनदर. एंड इफ यू सी, अगर आज हम देखें, न्यू फंक्शन आर आल्सो एंटर्ड. If any you are calling any city as an urban area, we have recreational towns, we have residential towns, we have transportation town, we have mining town, we have manufacturing town. So a lot of activities are carried out. Earlier it was not a part to call any city urban area. Some of these functions is not necessary that they are urban center, right? और क्योंकि अर्बन सेक्टर में आपको गांव वाले कुछ फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, राइट? सो दैट आल्सो यू कैन से. सो सम टाउन्स आर परफॉर्मिंग मल्टीपल फंक्शन. ये मत मान के चलना कि एक शहर सिर्फ एक ही फंक्शन प्ले करता है. इट इज़ परफॉर्मिंग मल्टीपल फंक्शन, राइट? बट सम फंक्शन प्लेज डोमिनेंट फंक्शन, राइट? कुछ कुछ शहर एक खास तरीके का फंक्शन प्ले कर लेता है. जैसे अगर हम शेफील्ड की बात करें, दिस इज़ इंडस्ट्रियल टाउन इन लंदन, बट इट एक्ट एज अ पोर्ट सिटी आल्सो, राइट? चंडीगढ़ एक एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन भी है और बाकी फंक्शंस भी वो प्ले करता है. सो लार्ज जो सिटीज़ होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े सिटीज़ होते हैं, उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है फंक्शंस में. उसमें सिर्फ एक ही फंक्शन को रोल प्ले करेंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? सो मच डाइवर्सिटीज है. बिसाइड्स ऑल सिटीज़, right? Cities are basically dynamic in nature. A lot of functions add every year in a period of time, and they start developing new functions in that, right? So अगर हम अर्ली 19th सेंचुरी के हिसाब से हम लोग देखें, जैसे फिशिंग पोर्ट्स थे इंग्लैंड में, अब वो टूरिज़्म के लिए फेमस हो गए, सिर्फ फिशिंग के लिए ही रह गए. सो दैट्स पॉसिबिलिटी. इन कमिंग ईयर्स दे चेंज देयर फंक्शन आल्सो. लाइक मैनी ऑफ द ओल्ड मार्केट्स, टाउन जो थे, जो शहरों में मार्केट्स होते थे, अब वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ आ गई हैं. सो पॉसिबिलिटीज आर देयर, राइट? सो टाउन्स एंड cities can be classified according to categories. Now we'll take one by one category. If any city we calling as administrative towns, all national capitals, जितनी भी देश की राजधानियाँ होती हैं, they all are administrative towns, right? And here administrative office can be of center or state, like New Delhi, Canberra, Beijing. These are all the capitals of a country. Addis Ababa, they are all administrative towns. Washington DC, London, they are all administrative towns, right? Some towns are provincial, right? स्टेट के कैपिटल भी हो सकते हैं, किसी प्रोविंस के भी कैपिटल हो सकते हैं, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस प्ले करते हैं. जैसे लाइक विक्टोरिया, दैट इज़ इन USA, अल्बानी, then we have Chennai in Tamil Nadu, that's playing a capital of state also. Then we have trading and commercial towns. अगर हम देखें trading and commercial town, तो मेनली दिस आर एग्रीकल्चर मार्केट टाउन्स. इसमें एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को बेचा खरीदा जाता है. लाइक वी हैव विनीपिग, राइट? देन वी हैव कंसास. Centers become a pilgrimage center like Jerusalem. Then we have Makkah. Then we have Jagannath Puri, which is in Odisha. Then we have Varanasi, which is considered to be a very important cultural towns of the world, right? यहाँ पे किसी धर्म, किसी स्पेशल कल्चर के कारण डेवलपमेंट होता है, and some cities were developed according to that, right? So these centers become a center for religious importance because there must be some sacred reasons may be there for that, right? But cities also play additional functions, which I told you. Cities are mainly these days are multifunctional, right? So they also do some other functions also. They perform health and recreation functions. Like we have Miami, which is in US, right, and Panaji, which is mainly for recreation center. Then we have some industrial towns like Pittsburgh and Jamshedpur in India. Some cities are famous for mining and quarrying, जहाँ पे mining वगैरह होती हो. We have cities like Broken Hill, right, and Dhanbad. And some cities are famous due to transportation, like Singapore and Mughal Sarai, right,
They are located at very important places of that's it. सो अगर हम क्लासीफाई करें टाउन्स को ऑन द बेस ऑफ फॉर्म्स, उनकी शेप के हिसाब से अगर हम क्लासीफाई करें, राइट, जैसे गांव में मैंने आपको बोला था उनका पैटर्न शेप अलग अलग होती है, तो सम अर्बन सेटलमेंट इज लीनियर, सम वन इज ऑन स्क्वायर शेप, सम वन इज स्टार शेप, सम वन इज इन क्रेसेंट शेप, लाइक जैसे चांद होता है वैसा. सो दैट टाइप ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स यू कैन आल्सो सी. बट इफ यू सी इन द फॉर्म ऑफ सेटलमेंट, आर्किटेक्चर and style of buildings and other structure, mainly it depends on historical and cultural tradition, like bungalows were made in West Bengal, Gujarat and all. Some historical trend may be there why these buildings were like that. Like some towns and cities mainly develop and some developing countries रिफ्लेक्ट मार्क्ड ऑन देयर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट. अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज में घर देखेंगे तो यू फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस, बट इफ यू सी डेवलप्ड कंट्रीज, देयर टाउन्स एंड cities are different, right? The pattern, their architecture is totally different, right? If you see most of the cities in developed countries, अगर हम देखें, they are more planned. They have a planned type of city. Most urban settlements अगर आप developing countries में देखेंगे, they evolved due to some history. और उनकी कोई शेप्स नहीं होती है, उनका कोई स्पेशल पैटर्न नहीं होता, दे आर ऑफ इरेगुलर शेप. बट वी हैव सम एग्जांपल्स इन डेवलपिंग कंट्री व्हिच शोज अ प्रॉपर सिमेट्री ऑफ अ टाउन्स लाइक चंडीगढ़, then Canberra, that is in Australia, they are very planned cities, right? Some smaller towns are there which have been developed due to history. Maximum cities of India is developed from history, right? And they have a walled cities. उनके चारों तरफ सुरक्षा के लिए बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी जाती थी. There is a chapter in class 12, Vijayanagar Empire. So many forts have been constructed, so many layers of embankment has been made to protect the city. Then they have given a case study of Addis Ababa, right? This is a capital of Ethiopia, right? The name Ethiopian capital Addis Ababa means, Addis means होता है new, अबाबा मीन्स होता है फ्लावर, एक नया शहर, एक नया फ्लावर. एंड दिस सिटी हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन 1878. तो इसको 1878 में बनाया गया. मेनली अगर आप देखेंगे तो सारा शहर जो है डैट इज़ लोकेटेड ऑन हिल वैली, हिल के पास में और वैली पे है. टोपोग्राफी उसकी वैसी है, पहाड़ जैसी. एंड जो रोड का जो पैटर्न है वो काफ़ी हद तक लोकल टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है कि रोड्स कैसी बनाई जाए उसमें. एंड मेनली इफ यू सी रोड्स आपकी देखेंगे तो डैट रेडिएट्स फ्रॉम गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स. अगर कोई गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर वहाँ पर है तो वहाँ पर से आपको रोड्स निकलती दिखती हैं, राइट? एंड वी हैव सो मेनी हेडक्वार्टर्स लाइक प्याजा, देन अरात, देन अमिट्सकिलो. सो रोड्स आपको इन सेंटर से रेडिएट होती हुई दिखती हैं यहाँ पर. Then there is a place called Mercato in Ethiopia. It has a markets, right? And this markets have developed in some time. And this is the largest market between Cairo and Johannesburg. Cairo is in Egypt, right? And Johannesburg is in South Africa. So सबसे बड़ी market है इन दोनों के बीच, शहरों के बीच में ही है. We come across with multi-faculty university. आपको कई faculty members दिखेंगे different subjects के. Then medical colleges, number of good schools make Addis Ababa a very important education center in Africa. Otherwise अफ्रीका में आपको ऐसे शहर देखने को कम मिलता है. It's a very important terminal station for different rail routes. Djibouti Addis Ababa rail route जो मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर में करवाया था. दैन इट्स अ वेरी फेमस एयरपोर्ट देयर इन इथियोपिया, इट्स कॉल्ड बोल एयरपोर्ट. इट्स अ न्यू एयरपोर्ट, राइट? बट दे हैव कंस्ट्रक्टेड एवरीथिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर अ सिटी. तो सिटी हैज़ विटनेस ए रैपिड ग्रोथ, क्योंकि आपको सारी फैसिलिटी मिल रही है तो बहुत सारी ग्रोथ दिख रही है इसका. तो इसके फंक्शन बहुत सारे मल्टी फंक्शन हैं. एंड इट हैज़ बीन सेट अप एट ए नोडल सेंटर, दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ इथियोपिया, राइट? So this way how the cities are developing in somewhere in developing countries. Then Canberra, a second case study is there of Canberra. That this place is in Australia. It was planned as a capital of Australia in 1912. तो आज भी कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया का. तो एक अमेरिकन लैंडस्केपर था
जिसने इस शहर को बसाया, उनका नाम था वॉल्टर बर्ले ग्रिफिन, राइट. तो ही हैज़ सेट अप द प्लान फॉर द सिटी, and he mainly tried to make this city as a garden city, and he considered that 25,000 people will take into that. उसके हिसाब से नेचुरल फीचर्स को क्रिएट किया गया, लैंडस्केप्स को क्रिएट किया गया इस एरिया में. वी हैव मेनली 5 सेंटर इन द सिटीज़, और हर सेंटर का फंक्शन अलग अलग है इसमें, ठीक है. बट अ फ्यू डेकेड्स सिटी हैज़ एक्सपेंडेड टू मच, because earlier it was planned for only 25,000 people. Now so many small satellite towns, जब एक बड़ा शहर होता है उसके पास में छोटे छोटे कस्बे से बनने लग जाते हैं, and city develops according to that, right? So satellite towns are also there. So city has a wide open spaces. एक शहर में जगह नहीं होती, बस में है, and many parks and gardens are also located in this area, right? So this city is very planned and very professional type of city, right? Now we will see types of urban settlement कैसा होता है. साइज और सर्विस को देखकर हम टाइप्स बताएंगे अर्बन सेटलमेंट कैसे होते हैं, राइट. और उसके हिसाब से वो अपना फंक्शन प्ले करता है, उनका पैटर्न कैसा होगा, राइट. तो सम सिटीज़ सेंटर्स आर कॉल्ड टाउन. किसको शहर कहा जाता है, किसको सिटी. मेनली वी कॉल एनी अर्बन सेंटर एज ए सिटी और टाउन विच इज़ कंसिडर्ड अ मिलियन सिटी. किसको कॉनबरेशन कहा जाता है, किसको मेगापोलिस कहा जाता है. सो ये हम लोग देखेंगे, बोर्ड में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, राइट. सो विच अर्बन सेंटर इज कॉल्ड टाउन. द कॉन्सेप्ट ऑफ टाउन कैन बी अंडरस्टूड विद रेफरेंस टू विलेज. विलेज से थोड़ा सा बड़ा इसको टाउन करेंगे, बट पॉपुलेशन इज ओनली नॉट ए क्राइटेरिया टू डेजिग्नेट सम एरिया एज अ टाउन. पॉपुलेशन नॉट ए क्राइटेरिया फॉर दैट. देन फंक्शनल कॉन्ट्रास्ट टाउन और विलेज में बहुत सारे होते हैं, ठीक है. बट ये कोई क्लियर कट नहीं है. कोई छोटा सा गांव भी बढ़ता बढ़ता एक टाउन में हो सकता है, राइट. बट सम स्पेसिफिक फंक्शंस विच टाउन प्लेज विच इज़ नॉट इन रूरल एरिया. मैन्युफैक्चरिंग होगी यहाँ पर, रिटेल मार्केट्स बहुत दिखेंगे, होलसेल ट्रेड दिखेगा. सम प्रोफेशनल पीपल आर आल्सो देयर विच रेंडर देयर सर्विसेज, राइट. सो देयरफॉर वी कॉल इट अ टाउन. Now what is city now? City is mainly एक ऐसा टाउन जो बहुत लीडिंग हो, बहुत सारा लीडिंग हो, राइट. एंड और वो अपने लोकल एरिया से काफ़ी अलग सा हो गया हो. एक टाउन, दो टाउन है मेनली. वन बिकम वेरी स्पेशलाइज और अपने दूसरे टाउन से वो बिल्कुल अलग हो गया, तो उसको हम लोग सिटी का नाम दे देते हैं. So in words of Lewis Mumford, city is mainly physical form के हिसाब से है, और इसमें आपको बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप की लाइफ देखने को मिलेगी सिटी में एज़ कम्पेयर टू टाउन, राइट. सिटीज़ आर मेनली लार्जर देन टाउन्स. अगर हम देखेंगे सिटीज़ बड़े होते हैं टाउन से, और इसमें आपके ज़्यादा फंक्शंस प्ले किए जाते हैं, राइट. सिटीज़ आर मेनली मल्टी फंक्शनल. So they have good transportation systems. They have terminals from where maximum cities के लिए जगह बसें वगैरह जाती हैं. और यहाँ पे आपको बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स वगैरह दिखेंगे. देन वी हैव सम रीजनल ऑफिसेस भी आपको यहाँ पे दिखेंगे, राइट. और जब पॉपुलेशन क्रॉस कर जाती है किसी सिटी की 1 मिलियन तक, तो उसको हम लोग मिलियन सिटी का नाम दे देते हैं. नाम से पता लग रहा है जहाँ पॉपुलेशन 1 मिलियन के आसपास हो जाएगी. सो दैट्स इट. देन देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड विच हैज़ बीन यूज्ड इन अर्बन, दैट इज़ कॉल्ड conurbation. This word has been coined by a person called Patrick Geddes, 1950, and it is applied to those urban area that merge small towns and cities. मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, एक शहर के आसपास छोटे छोटे सबर्ब्स बनने लग जाते हैं जिसको हम सैटेलाइट टाउन्स कहते हैं. बाद में ये मर्ज हो जाता है, तो इट टर्न्स टू बी ए कॉनरबेशन. तो एक बहुत बड़ा शहर बन जाता है. जैसे दिल्ली एंड NCR ऑल कम्स अंडर दिल्ली ओनली, राइट. तो ऐसे बन जाता है आसपास, इसको हम कॉनरबेशन का नाम देते हैं. सो वी हैव सिटीज़ लाइक दैट. वी हैव ग्रेटर लंडन हैज़ बीन फॉर्म इन दिस फैशन, मैनचेस्टर, देन वी हैव शिकागो, देन वी हैव टोक्यो. India में Delhi we have, right. Then there is a city called megapolis.
इस ये ग्रीक वर्ड है मेगापोलिस, दैट मीन्स ग्रेट सिटी, बहुत बड़ा शहर। इसको जीन गॉटमन ने किया था शुरुआत, और दिस इज़ कॉल्ड सुपर मेट्रोपॉलिटन सिटी। और इसमें कई आपके कॉनुर्बेशन का मिक्सचर होता है, कई छोटे छोटे कॉनुर्बेशन जो मिलकर एक मेगापोलिस को बनाते हैं, राइट। बहुत बड़ा शहर, ग्रेट सिटी, तो वी कॉल इट एज ए ग्रेट सिटी, राइट। सो दैट्स इट। सो अर्बन जो लैंडस्केप है वो स्ट्रेच होता है। अगर आप बोस्टन को देखेंगे, बोस्टन इज इन यूएसए, ये आपका नॉर्थ टू साउथ ऑफ वाशिंगटन है, और वेस्ट इज आल्सो नोन फॉर megapolis, Boston, right? So we have example like that. Then million city, there are number of cities in India and the world which cross a population around million. ठीक है, तो we have seen this type of trend never before, right? This is the trend of 20th century, right? So that's it. So London का 1 million मार्क 1800 के आसपास it received, 1 million का टारगेट पॉपुलेशन 1800 में ही फॉलो कर लेना। Paris has reached 1 million mark in 1850, New York in 1860, and by 1915 80 ऐसे cities बन गए जिनकी population 1 million के आसपास है। So why the rate of increase in the number of million city? 3 decades से आपको बहुत सारे cities develop देखने को मिलेंगे जो 1 million का achieve कर चुके हैं। So that's it. Then we have so they have given a very good chart for that. See this. देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेगा सिटीज़। अगर हम देखें मेगा सिटीज़ को, तो मेगा सिटी या मेगापोलिस ये ऑलमोस्ट हम जनरल एक जैसे वर्ड्स के साथ देखते हैं, राइट। और जिसके सबब की पॉपुलेशन 10 मिलियन के आसपास होती है। जैसे एक बहुत बड़ा शहर है, उसका आसपास सबब से उसकी पॉपुलेशन भी 10 मिलियन होगी, तो हम इसको मेगा सिटीज़ का नाम दे देते हैं। तो आपको ये तीनों को बहुत ध्यान से देखना है। सो न्यूयॉर्क इज़ द फर्स्ट सिटी टू अटेन द स्टेटस ऑफ मेगा सिटी। तो न्यूयॉर्क के आसपास वाला एरिया जहाँ की पॉपुलेशन अराउंड 12.5 मिलियन के आसपास है, तो दैट बिकम ए मेगा सिटी। सो मेगा सिटीज आल्सो इंक्रीज, नाउ इट इज़ अराउंड 25 cities आर कंसिडर्ड मेगा सिटीज ऑफ वर्ल्ड। सो वी हैव so many mega cities which has increased in developing countries also. ऐसा नहीं है कि इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ ओनली डेवलप्ड कंट्रीज। So many mega cities have also been made and developed. Last 50 years में आपको developing countries में भी आपको देखने को मिल रहा है। As compared to developed countries, these having more, developing countries having more mega cities. But what are the problems human settlement is facing in developing countries? क्या क्या problems face होती हैं? Especially अगर हम देखेंगे तो जैसे अनसूटेबल कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, जितनी पॉपुलेशन उसके लिए रहनी चाहिए उससे ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे बसती है। घर बहुत कंजस्टेड होते हैं, स्ट्रीट्स बहुत कंजस्टेड होती हैं, दे डोंट हैव अ रूट, दे डोंट हैव अ स्पेशल पाथ। फैसिलिटीज़ ड्रिंकिंग की कम हो जाएगी क्योंकि पॉपुलेशन बहुत सारी रह रही है। देन दे लैक इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी का भी कोई सिस्टम नहीं होता, सीवेज डिस्पोजल कहाँ गंद को डालना है वहाँ भी नहीं होता। हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं, पॉपुलेशन इज मोर। So this type of cities mainly facing lot of problem, right? People mainly, why people migrate from rural to cities? Because of employment. Due to employment, they migrate from rural to cities, right? And due to enjoy some civic amenities. But most of the developing countries, if you see, they are unplanned, they don't have any planning, right? So they face a problem of congestion, भीड़ बहुत दिखती है आपको, and that type of problem. Then shortage of housing, घर नहीं मिलते हैं, then vertical expansion होने लगता है, एक ही तरफ आपका expansion होने लग जाता है। Then we come across with slums. That's the reason why Dharvi is the largest slums of the world. So it's near to Bombay, right? So this type of feature of modern cities mainly you find in this one, right? Then increasing number of proportion of population जितनी रहनी चाहिए उससे ज़्यादा लगने लग जाती है, तो people lives in substandard houses. They prefer to live in slums and squatter type of settlements. So these are the main problems which they are facing, right? Maximum if you see most million plus cities, अगर हम देखें जिसकी population million हो गई है, so
आपको एक आदमी 4 लोगों में से बहुत इलीगल सेटलमेंट में रहता है, जिसका कोई भी डिज़ायर्ड नहीं होता, बहुत कंजेशन होती है, बहुत गंदगी होती है उस एरिया में, एंड दिस इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट, स्पेशली इन अर्बन एरियाज, राइट। इवन इफ़ यू सी एशिया पैसिफिक कंट्रीज, अगर हम एशिया पैसिफिक कंट्रीज को भी देखेंगे तो 60% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन lives in this type of settlements, which is not hygienic, which is not healthy. So that type of problems mainly urban settlement people are facing, right? तो अगर healthy city किसको कहते हैं? According to WHO, they have given the definition, which is a clean and safe environment and which meet the basic needs. रोटी कपड़ा मकान के लिए पूरा कर दे, and community का बहुत participation होता है local government में, हेल्थ सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड करे, तो वी कॉल इट एज अ हेल्दी सिटी, बट आई डोंट थिंक सो एनी सिटी इज प्रोवाइडिंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स. देन वी हैव सम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर आल्सो राइजिंग बिकॉज पॉपुलेशन विल राइज. पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया टू फॉर गेट जॉब्स, बट decrease of job opportunities comes in rural areas also, in urban areas also, especially in developing countries. This type of problems are there. गाँव में काम नहीं होता, therefore they push this rural people to settle in urban areas. तो भीड़ इकट्ठी होती रहती है. So lot of population migration जब होती है तो we come across a lot of unskilled and semi-skilled labor force. And already urban area is saturated, भर गया होता है, उससे ज़्यादा लोग आने से जॉब नहीं मिलेगा. So these are problems we are facing. Then there can be social and cultural problems. Mainly these cities are suffered from several social ills. आपको कई सामाजिक प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है. जब कई लोगों के पास पैसा नहीं होगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होंगे और अपने फेल हो जाएंगे इसको अकोमोडेट करने के लिए, देन दे go for some wrong activities, right? If they're not able to fulfill their basic needs, then they will when they will not education facilities they are not getting, health facility they are not getting. तो एक अर्बन एरिया के लोगों को ना तो अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी मिल पा रही है, ना ही उनको हेल्थ फैसिलिटी मिल पा रही है. सो हेल्थ मीन्स व्हाट डज हेल्थ हेयर मीन्स? हेल्थ का मतलब यहाँ पर होगा कि अगर शहरों में बहुत ग्लूमी सी पिक्चर है, पीपल आर नॉट हेल्दी, राइट, एंड जॉब इज़ आल्सो नॉट देयर, एजुकेशन फैसिलिटीज इज़ नॉट देयर. इससे क्या होता है, क्राइम रेट बढ़ने लग जाता है शहरों का. इफ़ यू सी मैक्सिमम मेट्रो सिटीज़, क्राइम रेट्स आर टू मच. व्हाई इज इट सो? देन मेल सेलेक्टिव माइग्रेशन होती है, मेल्स ही माइग्रेट करते हैं अर्बन एरिया में, तो इससे आपका सेक्स रेशियो भी काफ़ी हद तक डिस्टॉर्ट कर जाता है, राइट, इन सिटीज़ में. Then we have some environmental problem. So when we have large population in developing country, right, then it disposes huge quantity of water. Water wastage or water scarcity is common in urban areas, right? Waste materials भी बहुत सारा हो जाता है, dump yard बन जाते हैं एक बड़े-बड़े शहर. So many cities of the developing countries, if you see, it's very difficult to provide them minimum required of a water. एक शहर प्रॉपर वे से प्रॉपर वाटर भी नहीं प्रोवाइड कर पा सकता फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस. सो दिस टाइप ऑफ सिटीज़ आर फेसिंग दिस टाइप प्रॉब्लम. देन वी डोंट हैव अ सीवरेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता जहाँ से पानी, गंदा पानी बह के जा सके. सो दैट क्रिएट अनहेल्दी कंडीशंस. देन स्टिल इन सम अर्बन एरियाज दे यूज ट्रेडिशनल फ्यूल. LPG is not there because they cannot afford it, right? So that also pollute the environment. और इससे environmental pollution is also the problem, right? Then we have so much domestic and industrial waste. सारा इकट्ठा होने लग जाता है नालियों में, सीवरेजेस में, और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, और that creates health hazards, right? So huge concrete structures mainly बनाए जाते हैं, घर बहुत सारे बना दिए जाते हैं. So that creates one type of thing that is called heat islands. तो गर्मी बढ़ती है शहरों में, आपको गर्मी ज़्यादा फील होती है due to construction, right? So a special type of islands are created that is called heat islands, right? So what type of urban strategy should be there? According to UNDP, they have make some priorities for urban strategies, right? दे स्ट्रेस मोर शेल्टर टू द अर्बन पुअर. जो शहर में लोग गरीब हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड करना, उनको
बेसिक अर्बन सर्विसेज मिलनी चाहिए, जैसे उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए, प्राइमरी हेल्थ केयर उनको मिलना चाहिए, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन शुड बी गिवन, इम्प्रूविंग वुमेन एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, एनर्जी का भी यूज़ होना चाहिए, एलपीजी वगैरह लोग यूज़ करें, ट्रेडिशनल फ्यूल को यूज़ ना करें, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मिलना चाहिए और पॉल्यूशन पे भी रिडक्शन होना चाहिए। सो ये यूएनडीपी की कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं। सिटीज़ एंड रूरल सेटलमेंट्स मेनली दे आर कनेक्टेड थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। एक शहर दूसरे अर्बन एरिया से कनेक्टेड है, राइट। और यहाँ से गांव से उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है गुड्स और रिसोर्सेज का। सो अर्बन रूरल लिंकेज आर वेरी क्रूशियल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ ह्यूमन। अगर आदमी ने रहना है तो ये लिंक को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, वैसे। सो जैसे जैसे ग्रोथ आपकी रूरल पॉपुलेशन की होगी, राइट, so more and more generation of employment should be there, more and more economic opportunity should be there. So rural to urban migration has increased because less opportunities in village, right? And that's the reason, especially in developing countries, so a lot of pressure has been mounted on urban infrastructure. So that is under serious threats. सो इट्स वेरी अर्जेंट टू इरेडिकेट रूरल पॉवर्टी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम गांव में जो गरीबी है उसको ख़त्म किया जाए और उनकी क्वालिटी ऑफ लिविंग को बढ़ाया जाए और अच्छी जॉब्स क्रिएट की जाए रूरल सेक्टर में, ताकि दे शुड माइग्रेट फ्रॉम दिस एरियाज। सो फुल एडवांटेज शुड बी टेकन फॉर दिस लिंकेज, अर्बन से रूरल का जो लिंकेज है उसको डेवलप किया जाना चाहिए, राइट। एंड इन दिस वे द सिटी कैन बी डेवलप्ड. So this is a full chapter. I hope you understood this chapter. We'll take on another chapter. Please watch and share this video with others. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.